Mrs. Zainab, who is 18-year-old female, para 1, who has presented at 12-week gestation with vaginal bleeding from 1 day. He has no antenatal checkup done in this pregnancy. You will have a 10 minutes to have a structured discussion on how will you manage this patient from now on with examiner. Chalo. Okay. You want to start whenever? Yes, sir. Assalamualaikum. I'm Dr. Sidra. I'm one of the exam candidate and I have read the instruction. I'm ready for the structured discussion. After confirming the given biodata, I will take the brief biographic detail of my patient, education, occupation, husband name of my patient, her duration of marriage. I will ask about her last menstrual period, from which I will calculate her gestational age, her gravida, para, her previous mode of delivery. Is she conceived spontaneously or with the help of ovulation induction, and how she confirmed her pregnancy. I will ask about the presenting complaint, that is vaginal bleeding. Is it the first episode of vaginal bleeding or recurrent episode of vaginal bleeding? The amount of bleeding, the color of the bleeding, the number of the pads she is using per day, the passage of clots or any passage of the vesicles. Is it associated with pain? Any trauma or post-coital bleeding history? Is it associated with vomiting? The episodes of vomiting, the color of the vomiting, and is it affecting her quality of the life or not? Any recent history of the weight loss history? Is she noticed any increase in the size of abdominal girth? Then is she have any previous episode of nausea on the vomiting for which she hospitalized? Any history of the raised blood pressure? Any history of the cold or heat intolerance in this pregnancy? And I will ask about any associated abdominal pain to rule out gastroenteritis or pyelonephritis. Then in past obstetrical history, I will ask about, as she's para 1, so any antenatal or the postnatal complication or weight of the baby and the Apgar score of the baby. In gynae history, I will ask about the cycle regularity, previous pap smear history, contraception history. Then in past medical history, I will ask about the diabetes, hypertension, epileptic history, family history, previous in family history, any molar pregnancy running in her family. Then I will ask her about any treatment she has been taken for this complaint. Then in yes, sir. Then in general then in examination, I will do the general physical examination of my patient. If she is complaining of vomiting, then I will overall look for the dehydration status of my patient. Then do the vitals, that is blood pressure, pulse, temperature of my patient, thyroid examination of the patient, and look for the edema. Then I will do the breast and chest examination of the patient and do the per-abdominal examination. That is there any pain to rule out perihepatitis or pain in hypogastrium to rule out pyelonephritis pain. Then I will do the vaginal examination to rule out that as there is a bleeding or clots or these are RPOCs. What investigation would you do? Sir, in investigation, I will do the baseline investigations, CBC, in which I will check the hemoglobin, TLC platelet to rule out anemia or any infection. Then I will do the RFTs, LFTs, and electrolytes for any electrolytic imbalance. And then in specific investigation, I will do the transvaginal examination, transvaginal ultrasound, that either it is an intrauterine or extrauterine pregnancy or viable or non-viable pregnancy, and either it is a singleton or multiple pregnancy, or there is any hydropic features found inside the uterus. Cystic features. Okay, आपका
let's suppose इसमें cystic finding आ जाती है on ultrasound, जी सर. and there's no evidence of just sacs or fetus, but multiple echoes present throughout the cavity. Yes sir. So what is Uh, most likely diagnosis? Sir, my most likely diagnosis is complete molar pregnancy, as it's showing the features of this. Okay, then you have a evacuation done, and then the report is tissue obtained informally. Tissue Yes contains sir. hydropic villi with placental vasculation and destruction of normal stroma. No fetal part seen. Yes. So how will Sir, you now counsel the patient? Sir, I will explain and counsel the diagnosis of the patient in a very empathetic way that it is a molar pregnancy. And I will tell her that it is a 90 percentage the complete molar pregnancy that occurred due to the dispermic fertilization of an empty ovum. I will explain the diagnosis and also explain the complication if it is left untreated. I will admit my patient. I will involve the multidisciplinary team, senior obstetrician, radiologist, histopathologist, anesthetics, and hematologist. I will take the anesthesia fitness and arrange the blood and fulfill the WHO surgical safety checklist. After optimization of the HB of my patient, if HB is drop, then I will keep her my patient first on list and will do the under section and will do the section evacuation under the ultrasound guidance, and will send the specimen for the histopathologist. And I will ask my patient for the follow-up report and possibility of the recurrence. That for follow-up 1 to 2 weekly of my patient. And after the normalization of the if the normalization of the beta HCG they occur in 56 days, and after this I will ask for the follow-up of a patient monthly for 6 months. And post-operatively, I will do the VTE assessment of my patient. I will tell her about the contraception. That is barrier method that is safe. I will ask her for that post-operatively. Okay. What factors are considered in the FIGO scoring system of GTN? Sir, age, antecedent pregnancy, pre-treatment beta HCG, number of metastases on the previous chemo taken or not, and size of the size and number of the tumors. Okay. What are the indications for the chemotherapy? Certain indication of the 3 or more than 3 consecutive rising beta HCG or the plateaued beta HCG level, or heavy vaginal bleeding, or the evidence of the gastrointestinal or intraperitoneal hemorrhage, the number of the metastases spreading to the vulva vagina, and when the evidence of the choriocarcinoma, history suggestive of the evidence of choriocarcinoma. These are the indications for the chemo. Okay. Or when there's a beta HCG level greater than 20,000, more than 4 weeks after the evacuation. All right. चलो ठीक है, ऑलमोस्ट टाइम भी हो गया हमारा. तो हाउ डू यू थिंक कि ये आपका स्टेशन कैसा गया? सर बस गुजार रहा है सर, काफी पॉइंट्स मिस भी किए हैं. ओके, मसलन सर वो ओटी प्रिपरेशन लाइक पेशेंट्स को हम शिफ्ट करके और प्री ऑप प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं बताइए. और अच्छा, और सर मैंने इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपर नहीं मांगी, लाइक एचपी नहीं मांगा. मैंने वेट नहीं किया कि आप मुझे वैल्यूज दें तो मैं उसके अकॉर्डिंग मैनेज करूं. और
सर वो आप बताएं। नहीं, मैं तो भी बता देता हूँ। देखो बेटा, पहली बात तो इसमें जो you need to understand there's a difference between a long case and the Stokes stations. जी सर। अब बात ये है कि आपने किया ये कि जो मैंने बातें कही कुछ आपने सुनी कि कुछ नहीं सुनी। अब एक पेशेंट है, जो मुझे आप ये बताओ, जो उन्होंने 18-20 years ऑफ यंग पेशेंट विद पैरा 1 and 12 weeks पे ब्लीडिंग के साथ आती है, तो बेसिकली आपकी डीडी क्या बनती है इसमें? सर दीदी इसमें जो है मोलर प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, सर देखो लो लाइंग मोलर प्लेसेंटा। मोलर हाँ, मोलर वुड नॉट बी द नंबर वन। जी सर। सिर्फ आपको उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक, 18 years ऑफ एज, पैरा 1, 12 weeks ऑफ प्रेगनेंसी विद ब्लीडिंग, तो जी सर। मोलर तो आपको उन्होंने बता दिया है कि जो मोलर पे होना है, तो आप मोलर का चैप्टर का रट्टा मार के आ गए मेरे पास। पर जी सर। मोलर वुड नॉट बी द डीडी ऑफ नंबर वन, वुड दैट बी? यस सर। पहली चीज आप यही सोचते हो कि जी कि मोलर होगी। कोई पेशेंट आती है 12 weeks पे, पैरा 1 विद ब्लीडिंग। नहीं सर, मिसकैरेज, थ्रेटेड मिसकैरेज उसकी शाबाश, सर। पहला मिसकैरेज और थ्रेटेंड, दूसरा आ गया, और सर मिसकैरेज हो सकता है, लो शाबाश, लाइंग प्लेसेंटा ठीक है, हो सकता शाबाश। है सर। एनी सर्वाइकल लाइक सर्विसाइटिस और उस लोकल आ तरीके से गया, लोकल कॉजेज आ गए। लोकल कॉजेज आ सकते हैं। ठीक, यस सर, और मोलर भी आ सर्वाइकल। गया बीच में। मोलर आपने बीच में बोला नहीं, फिर मोलर भी ऐड कर दिया। जी सर। अब बात ये है कि आपकी जो हिस्ट्री होनी चाहिए, जो फोकस हिस्ट्री है, वो हमने इस सब चीजों को रूल आउट करना है। यस सर। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? अब यस आपने सर। साथ शुरू कर दिया उसकी पूरे खानदान की हिस्ट्री सारा कुछ खिला खिला के। वो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल है, लेकिन बेसिकली जो आपके पास ये टाइम लिमिट है, उसके अंदर व्हाट यू कैन डू इज कि जी मैं अगर इस स्टेशन में आऊंगा, मैं आके पहले बैठूंगा, तो मैं पढ़ूंगा कि जी इसमें हालांकि इन्होंने इन्फॉर्मेशन थोड़ी दी हुई है, यस सर। मैं आपको इन्फॉर्मेशन उन्होंने थोड़ी दी हुई है, लेकिन चलो स्टिल अगर ये भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो मैं उसके पैरा 1 12 weeks पे देखने के बाद ये जगह मेरी 3-4 डीटीज हैं, तो मेरे जो जितने क्वेश्चंस हैं इट हैज टू बी रिलेटेड टू ऑल दीज, ताकि यस मैं सर। इसमें जल्दी कवर करके बताऊं कि जी हाँ जी उसने पहले, लेट्स सपोज इसी में अगर आप हिस्ट्री में लेके आते हो, उसकी एलएमपी कंफर्म करेंगे कि 12 weeks यस सर। की है कि नहीं। ठीक, करने के बाद उसकी जो ब्लीडिंग का पहला एपिसोड है कि एक बार पहले भी हुआ है, उसमें कोई और अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग जिस तरह हम नॉर्मली पूछते हैं, एसोसिएटेड पेन के साथ पूछते हैं, कोई पैसेज ऑफ वेसिकल्स तो नहीं हुए ड्यूरिंग दिस टाइम। यस सर। अगर वही हिस्ट्री देती है कि हाँ जी मुझे तो वेसिकल पास हुए थे, और प्रीवियस हिस्ट्री को पिछला कोई अल्ट्रासाउंड उसमें कंफर्म की थी कि प्रेगनेंसी आपकी इंट्रा यूट्राइन थी होती, और इसमें मेरा ख्याल है कि एक टॉपिक भी ऐड कर लो, इसमें सिर्फ ब्लीडिंग लिखा हुआ है, ये नहीं अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग लिखा हुआ। तो सर अगर अब नहीं बताया ना सिनेरियो में कि इसके हाँ, साथ है, तो फिर नहीं पूछेंगे। फिर आप देखो ना, एक टॉपिक अगर होगी तो उसमें अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग नॉर्मली 12 weeks पे काम होती है, पेन साथ हो यस सर। सकती यस सर। है, ठीक है। इसी तरह हिस्ट्री में लेके उसको रूल आउट करके कि जिसकी पेन है, ब्लीडिंग नहीं है, वो आपको दे देते हैं शुरू में कि जी की हिस्ट्री रहती है कि जी कि मेरे वेसिकल पास हुए थे। यस सर। फिर आपकी मोलर नंबर 1 हो जाएगी, फिर आप मोलर पे कंसंट्रेट करके फिर उस पर आगे चलो। यस सर। डू यू गेट माई पॉइंट? यस सर। तो जो पहला स्टेप होता है, जब आपको सिनारियो दिया जाता है, उसको बैठ के थोड़ा सा बैठ के सोचो, फौरन स्टार्ट नहीं करना। अब आपने इसमें आई डोंट नो कि कितनी हिस्ट्रीज, कुछ मतलब है कि ये फोकस नहीं थी, ये एक जनरलाइज, अगर मैं कहता कि जी कि ये लॉन्ग केस की हिस्ट्री है, उसमें तकरीबन आपने हर चीज ही कवर कर ली, लेकिन यस सर। इसमें फिलहाल के लिए क्योंकि ये स्टेशन जो है ये आपका उस हिस्ट्री टेकिंग का स्टेशन नहीं है, हम्म। इसमें अभी आगे जाके उसने क्वेश्चंस आपको रिलेटेड टू वॉट एवर योर डायग्नोसिस इज,
या मोलर के साथ आपने करने हैं। जी आपने सर। काफी चीजें कवर कर ली हैं, हम ऑलमोस्ट एंड तक भी पहुंच गए, टाइम भी था, लेकिन आई थॉट अगर आप इसको हिस्ट्री को थोड़ा छोटा करके उसमें डायग्नोसिस के अंदर आप पहुंच जाते पहले, तो आगे चले जाते। सेकेंडली, जब मैंने आपको हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट दे दी, आप फिर उसको जी सर। लेकर दोबारा थिएटर के अंदर दोबारा जाके आपने उसकी इवैल्यूएशन कर दी। उसकी क्या रीजन थी? हम्म। सही सर। क्योंकि वो आप अपना चैप्टर सोच के आप उसमें चले गए ना, कि हम्म। जी मैं तो अगर आ जाए तो क्या करना। सही। ठीक। और इसी में मूलर जी वगैरह सर। में ये नौजिया वॉमिटिंग सारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सारा कुछ फिर उसमें कवर हो जाएगा आपका। अदर देन दैट, जो थ्योरी आपकी थी वो आई थिंक यू कवर्ड इट वेरी वेल। जो मैंने क्वेश्चंस आपको पूछे उसमें आई थिंक उसमें जो की वाले क्वेश्चंस थे, तो उसमें तो प्रॉब्ली यू वुड स्कोर समवेयर लाइक बिटवीन 6 और 7 कर जाओगे इसमें। लेकिन इसमें आप और बेहतर भी कर सकते थे, फिर जी अगर सर। आप इन चीज़ों को फोकस करते हुए लेके जाते। क्योंकि इसमें हिस्ट्री में उन्होंने शुरू में कह दिया कि जी पेशेंट आती है कि जी विद द मोलर मैस, पैसेज ऑफ वेसिकल्स इन ब्लड। जी सर। फिर आप उसके हिसाब से फिर आपको शुरू में एक्सरे चेस्ट भी कराना चाहिए था, उसका जी बीटा सर। एचपी लेवल भी रिपीट कराना चाहिए था। और नंबर हम्म। 2, जाहिर है इसमें आपने पहले अगर पूछा हुआ है कि जी के उसकी पहले प्रेगनेंसी उसने कंफर्म कैसे की कि नहीं की, या उसका प्रीवियस कोई अल्ट्रासाउंड है कि नहीं है, जी सर। उसके हिसाब से हो जाता। क्योंकि देखो ना, इन्हीं में सारे में कि पहले अगर लेट्स सपोज वो हिस्ट्री दे देती थी कि जी के प्रेगनेंसी थी, इंट्रा यूट्राइन मेरी हम्म। प्रेगनेंसी आई थी, सारा कुछ ठीक था, लेकिन मुझे ये ब्लीडिंग स्पॉटिंग होती रही है, और उन्होंने कहा था कि ऑल मेरी नीचे है, तो फिर आपका लो लाइन प्लेसेंटा वो आ जाता। जी सर। ठीक। एंड उसी के हिसाब से फिर आपने उसकी अगर मोटा, तो उसमें आपने पीए करके उसकी फंडलाइट देखनी है कि अगर 12 वीक्स पे है तो फंडलाइट उसकी लेट्स सपोज 20 वीक्स तो नहीं चलेगी। फिर तीसरी बात नो उसमें सर। जो आपने डिफरेंशिएट करनी है, दैट इज बिटवीन कंप्लीट मोल एंड पार्शियल मोल, क्योंकि वो जी सर। आपके आगे मैनेजमेंट के हिसाब से करेगा। और उसमें अल्ट्रासाउंड में अगर उन्होंने दे दिया था नो फीटल पार्ट, और मेरे हिस्टोपैथोलॉजी में भी आ गया था कि जी की नो फीटल पीसेस या जो भी था उसमें नॉट सीन, दैट मीन्स कि इट वाज अ कंप्लीट मोल, इट वाज यस नॉट अ सर। पार्शियल मोल। फिर जो एक चीज जो सबसे बड़ी आपने मिस की थी, उसका फॉलो अप प्लान। जी सर। फॉलो अप प्लान के बाद वो आपको डायरेक्टली बताना चाहिए था, क्योंकि अभी हमने इसकी हिस्टोपैथोलॉजी मैंने आपको बताई है। अब मुझे बताओ कि उसको एडमिट क्यों करने की क्या जरूरत थी दोबारा। सर समझ आ गई, लाइक सर हिस्टोपैथोलॉजी के साथ आई थी तो फॉलो अप प्लान हमने बताना था हाँ, पेशेंट को। उसको फॉलो अप करना है कि जी उसका हमने पहले वाला बीटा एसिड देखना है जो सबसे में अवेलेबल है, उसके जी बाद अब सर। वाला बीटा एसिड रिपीट देखनी है, उसके बाद उसके बाकी साइन सिग्नल्स देखनी है, उसकी ब्लीडिंग इरेगुलरिटी का पूछना है, उसको कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताना है। यही 3-4 पार्ट रह जाते हैं ना उसके पेशेंट को, जी सर। कि हमने क्या करना है नेक्स्ट प्रेगनेंसी कब होगी, और उसके बाद अगर उसका बीटा सी राइज पे है या कम पे है, या कितने परसेंट कम होने चाहिए, या 56 डेज के अंदर बीटा सी नॉर्मल हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर क्या उसका प्लान होगा। अगर 56 डेज बिल्कुल। से ज्यादा है तो फिर उसका क्या प्लान होगा। इसी तरह नहीं होता। जी सर। बिल्कुल। दैट पार्ट यू मिस्ड। ओके दैट सर। दैट पार्ट यू काइंड ऑफ, जो इसका वेटेज थी कोई 2-3 नंबरों की, वो आपने बीच में काइंड ऑफ आगे कर दी। लेकिन उसके हिसाब से फाइन। भी थ्योरी में आपको तीनों के भी थी थे, फिगो भी आई थिंक यू कवर्ड इट ऑलमोस्ट ओके। जी सर। तो जनरली द फर्स्ट पार्ट इज कि जब भी आपको क्लिनिकल सिनारियो मिलता है, बेटा जरा 2-4 अपना सेकंड्स दो अपने आप को कि पूछने में कि जी इससे मुझसे क्या सोचो कि पूछना क्या चाह रहे हैं, या ये कहाँ लेके जाएंगे मुझे, मैंने क्या चीज कवर करनी है। ठीक है, ठीक है सर। इसमें रेलेवेंस ऑफ फैमिली हिस्ट्री में अगर सपोज मोलर है या नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है। वो फर्क पड़ता है। सर ये तो पूछना है ना कि मतलब थायराइड और ब्लड प्रेशर और ये सारी हिस्ट्री, तो सर हिस्ट्री ठीक थी। आप इन ऐसी चीजों के लिए आप कहोगे जी एनी मेडिकल डिसऑर्डर, ओके। ताकि तो इसी को बेसिकली शॉर्ट कर दो। आपको कवर ये आपका करना अभी वो रमजान मेडिकल स्टोर खुल गया होगा। एनी मेडिकल डिसऑर्डर्स लाइक ये बस साथ बोल के करके, ताकि यू मूव ऑन। मेडिसिन अभी जी की सर।
तो बोले भगवान जी। उसको करने के बाद देन आके विल सी कि हमें आगे उसको कैसे लेके जाना है, कैसे नहीं। ठीक है सर। इसमें कोई और आपका क्वेश्चन नो सर, सर समझ आ गई है। छुट्टियां बढ़ गई। आगे? एंड व्हाई डिड यू वैसे डू ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड? इसमें मुझे मैंने ये भी लिखा हुआ वैसे यहाँ पेशेंट का। सर बस ये है कि मैं तो मतलब वो स्टार्ट से जिस तरह से एडमिट करके ये कहते हैं सर, मेरे जहन में वही टेम्पलेट था ना, लेकिन वो मैं गलत जा रही थी, तो इस वजह देखो से सर मैंने ट्रांसफ्यूजन स्कैन वगैरह टीपीएस इज फिर। इंडिकेटेड जब आपको या शक है एक टॉपिक का, या आप कंफर्म नहीं कर सकते कि आपकी एब्डोमिनल फाइंडिंग जो अल्ट्रासाउंड है उसमें कोई ऐसी फाइंडिंग है जो आपके अपना क्या करना चाह रहे हो, कंफ्यूजन है, जी सर, बिल्कुल फिर टीबीएस का करेक्ट। रोल आ जाएगा। जी सर। वरना नॉर्मली इतनी हैवी ब्लीडिंग में जहाँ वेसिकल पास हो रहे हैं तो वहाँ टीबीएस अल्ट्रासाउंड इज डिफिकल्ट भी है और उसकी रिलायबिलिटी भी कम हो जाए। हो गया। हाँ, इसमें और कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो? हम्म, सर ये कीमोथेरेपी की थोड़ी सी कंफ्यूजन है, जिस तरह ये जो हम मल्टी एजेंट कीमोथेरेपी देते हैं ना, तो हम्म। सर D1 पे हम ईमा दे देते हैं, एंड देन 2 पे हम फिर EFA, एंड देन जो विनक्रेस्टिन और साइक्लोफॉस्फेमाइड है D8 पे। तो सर इसके बाद फिर हम वीकली केयर प्ले के दोबारा से ये वीक के बाद ये रिपीट करते हैं इस तरह से? सर गाइडलाइन में समझ नहीं आ रही थी मुझे इसकी। बेटा बेसिकली अगर ये है ये तो इट इज द डिसीजन ऑफ ऑन्कोलॉजिस्ट और इसकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि हमने इसको किस तरह लेके जानी है और कौन सी कीमोथेरेपी देनी है। जी सर। इसमें जो आपसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ये हो सकता है कि उसको आपने ये इवैक्यूएशन कर दी, फिर परसिस्टेंटली उसका पीसेस रह जाते हैं अंदर, पेशेंट को जी स्टिल सर। इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, बीटा सीजी राइज कर रहा है, तो फिर आगे क्या करें? जी सर। तो रूल आउट कोलियोकार्सिनोमा। यस सर। फिर और सिंगल एजेंट। हाँ, और जब आप जिसके कहो जी मेरा अपना तो अंदाजा ये है कि जी आप कहो कि जी विद जिस तरह हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी के जी विद द कंसेंट ऑफ ऑन्कोलॉजिस्ट वी विल डिटरमिन कि जी कौन सी कीमोथेरेपी देनी है, किस तरह देनी है और क्या आउट करना है, उसके बाद क्या करना है। जी लेकिन सर। मैं मुझे खुद इसका एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है मैं किसी ऑन्कोलॉजिस्ट से ही पूछ लूंगा और आई गो थ्रू दिस गाइडलाइन जो मैंने पढ़ी नहीं, सॉरी। नेक्स्ट टाइम फिर उसके आपको डिटेल बता दूँ। ओके सर। ठीक। थैंक चलो, यू। बस किसी ने कुछ और नहीं पूछना तो देन आई थिंक आर वी डन। चलो फिर, ओके बेटा, थैंक यू। आप हो थैंक कहाँ यू से सर। इसकी तरफ? सर इस्लामाबाद से। कहाँ पे पढ़ रहे? सर मैं मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स से मैंने ट्रेनिंग की है, लेकिन अभी आई मैं अम्मी के घर इस्लामाबाद में। नहीं, अभी कौन सी ईयर की ट्रेनिंग हुआ?
सर मैं कंप्लीट हो गया पार्ट 2 के एग्जाम है टॉक्स का। अपीयर हो गया कि अभी होना है? सर अप्लाई किया हुआ है, होंगी अपीयर होंगी। अभी आप मतलब रिटर्न पास हो गया? जी सर रिटर्न पास है। बस बेटा इस चीज का एक बार ध्यान रखो कि जरूरी नहीं कि हमने पूरा चैप्टर वहां पे सुनाना है। जी सर समझ आ गई। हाँ, जस्ट ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन द सिनारियो विच इज गिवन टू यू फर्स्ट, और उसके बाद देन यू स्टार्ट ऑफ। और एकदम एक दो चीजें पढ़ने के बाद फौरन नहीं स्टार्ट होता। और बीच जी में कुछ ऐसे सिनारियोज भी हैं जिसमें आपको थोड़ा अपना क्या कहते हैं एग्जामिनर से भी इंटरेक्शन थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इट ऑल जी डिपेंड प्रैक्टिस। लेकिन आई थिंक यू डू इट इंशाल्लाह। सर बस फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन थी, मैं कि प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दूं ताकि नहीं मतलब नहीं, ये करोगे तो यू विल गेट मोर। पढ़ने और प्रेजेंट करने में बहुत डिफरेंस होता है ना। नहीं, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर उस दिन जो प्रीवियसली जो मैंने की थी प्रेजेंटेशन, सर उसके बाद मुझे समझ में आया था कि स्ट्रक्चर डिस्कशन कैसे होता है। तो सर आज जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना आप, तो मैं जल्दी पिक कर रही थी कि इसका जवाब आप ऐसे देंगे। जैसे सर आपने स्टॉपेज बता दिया था, तो उसके बाद जस्ट एंड माल करके मतलब वो करना था, ये फॉलो अप बताना था। तो सर मतलब अब समझ में आ रहा है कि स्ट्रक्चर को कैसे लेकर जाना है। वैसे तो हम सर रट्टा बता देते हैं, पर पूरा शुरू से एंड तक पूरा चैप्टर। बेटा इसमें सिर्फ यही ऑर्गेनाइज करने के लिए, और वो क्या पूछना चाहते हैं वो हमने जवाब देना। दैट इज जी इम्पोर्टेंट। जी हमने सर। सिर्फ ये नहीं कहना कि जी हमें सारा कुछ पढ़ के आए हैं तो हमें इसकी इंडिकेशंस भी पता है, हमें फलां चीज भी पता है। और ये और तब सर होता है जब आप बैठ के अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हो। जी सर। सर और न्यू गाइडलाइन के हिसाब से ना सर, अब वो जो क्राइटेरिया था ना कीमोथेरेपी का, वो सर उन्होंने 3 कर दिए हैं। पहले सर वो जो पहले 4-5 थे ना क्राइटेरिया, अब उन्होंने 3 कर दिए। तो सर हम प्रीवियस वाले बताएंगे या अभी जो न्यू गाइडलाइन है उसके हिसाब से बताएंगे? आप कह दोगे एग्जामिनर को अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइंस जो इस साल आई हैं, जी सर। लेट्स सपोज 22 या 23 में जब आई हैं गाइडलाइंस, जी सर। उसके अकॉर्डिंग टू दैट हम ये करेंगे। और वो गाइडलाइंस कौन सी हैं ये भी अगर बोल दोगे तो कुछ में कोई हर्ज नहीं है। फिगो सर, जी सर नाइस की फिगो। है, फिगो की है, किसकी भी जी है, सर। जी अकॉर्डिंग टू सर। दी गाइडलाइंस ये सारा कुछ है, तो इट विल बी कवर्ड। और सर कंट्रासेप्शन भी आप बैरियर नहीं, आप तो सीओसीपी भी दे सकते हैं उसको। सिर्फ आईयूसीडी शुरू वाले दिनों में नहीं दे सकते, लेकिन सर उस सीओसीपी भी अब है ना, दे सकते हैं हम। लेकिन सीओसी बेटा आप उसको तो नहीं दे सकते ना जिसका बीटा सीजी लेवल बढ़ रहा हो। जी सर। नहीं नहीं सर, अगर डिग्री से हो। नॉर्मलाइजेशन के बाद फिर देंगे ना सीओसीपीस का। तो उसकी भी इंडिकेशंस हैं। सीओसी इज नॉट फॉर एवरी पेशेंट, लेकिन उसकी भी इंडिकेशन है कि किसमें आप एडवाइस कर सकते हो और कब कर सकते हो। जी सर। जी सर। ठीक है ना? क्योंकि देखो जी इस सर। मरीज को जो अब आई थी मेरे पास, ये मैंने हिस्टोपैथोलॉजी आपको बता दी। मैंने ना बीटा जी सीजी सर। आपको लेवल बताया, ना कुछ और बताया, ना उसकी सिम्टम्स के बारे में बताया। तो यू विल से कि जी मैं उसके सिम्टम्स पूछूंगी, कब हुई थी उसकी, रिपोर्ट कितनी देर हो गई है, और प्रीवियस बीटा सीजी था, और आप बीटा सीजी रिपीट करा के देन अकॉर्डिंग टू विल डिसाइड कि हमने आगे क्या चल। जी इट सर। कीप्स थैंक यू वेरी सर। सिंपल। लेकिन ये तब होगा जब आप थोड़ा सा तसल्ली से हर चीज में भागोगे नहीं। और सर इसमें हम सर एक ये बात मैथ्स पूछनी थी। हिस्ट्री नहीं पूछ सकते ना, मैथ्स को रूल सॉरी। आउट करने के। सर ये मेटास्टेसिस के लिए लाइक ये तो लंग्स में या लीवर में या ब्रेन में स्प्रेड होता है, तो सर अभी तो हिस्ट्री इस तरह है कि अभी तो हमें पता नहीं है ना कि मोलर है, तो लाइक जीटीएन के बारे में तो हम फिर हिस्ट्री में नहीं पूछेंगे ना। नहीं, अगर जब उसने आपको वेसिकल्स का कह दिया हिस्ट्री में सर बिफोर मतलब देन। अब स्ट्रक्चर्ड में तो एग्जामिनर हमें ड्यूरिंग हिस्ट्री तो फाइंडिंग्स नहीं दे रहा, वो तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन देन ही इज गिविंग फाइंडिंग टू अस। नहीं तो उसके तो बाद आप क्या पूछना चाहते हो फॉर मेटास्टेसिस के लिए क्या पूछोगे? सर लाइक शॉर्ट ऑफ ब्रेथ डिजीनेस या हाँ, जब आपको बता दिया तो यू कैन आस्क जी मैं इसकी वैल्यूएशन के अंदर ये सारी चीजें करूँ, सर तो एक्सरे और फर्दर हम उसमें हिस्ट्री पॉइंट्स में हम कहेंगे कि हम ये ऐड करेंगे। यस। जब वो अच्छा मिल गई है आपको इन्फॉर्मेशन, फिर देन यू स्टार्ट ऑफ कीजिए कि इसकी वैल्यूएशन के लिए मैं ये सारी चीजें जरूर करूँ। ठीक है सर। सर एक बात पूछनी थी कि जो फॉलो अप है जीटीएन का, वो इस तरह ही है ना कि वीकली अंटिल नेगेटिव एंड देन मंथली फॉर 1 ईयर।
मेरा ख्याल है कि बेटा इसमें थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया हुआ है। 6 months तक। हाँ, वो 6 months तक है इसका, और उसमें ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन कि उसका HCG लेवल कितनी जल्दी नीचे आया। मतलब I think शुरू में वीकली करना है ना सर, जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाता, एंड देन मंथली फॉर 6 months। देखो, इसमें थोड़ा सा इशू आ जाता है हमारा प्रैक्टिकलिटी का, लेकिन जो आपने वहां बताना है वो आपने जिस तरह लिखा हुआ है गाइडलाइंस में उसी तरह बताओ। लेकिन सर एक न्यू गाइडलाइन और जो 1 year है वो तो उसका लिखा हुआ है ना, GTN का लिखा हुआ है। GTN और का ये जो फॉर 6 months है, ये कंप्लीट मोल की मतलब वो है, पोस्ट फॉलो सर अप वो है। जो न्यू गाइडलाइन है ना सर, उसमें लिखा हुआ है अब 56 डेज का नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि 1 to 2 वीकली करवाएंगे हम बीटा ICG, और जब नॉर्मल आ जाएगी तो उसके बाद हम 6 मंथ तक, अगर कंप्लीट मोल है, और अगर सर वो पार्शियल है तो फिर उसके 1 मंथ के बाद फिर रिपीट करवाएंगे नॉर्मल वो होने तो के बाद। क्लियर है, पार्शियल और एक कंप्लीट का तो एक क्लियर है। अच्छा, इसमें अगर आप 1 वीकली के बाद पहली दफा रिपीट कराओगे, अगर तो वो फॉल कर रहा है, इट इज ऑन द वे डाउन, फिर आप उसको 2 हफ्ते और उसके अकॉर्डिंगली आगे ले जाओ। अगर आपने उसको वीकली कराया और वो ऑन द राइज है, फिर सिनारियो फर्क हो जाए। डू यू गेट माय पॉइंट? सर आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि GTN में फॉलो अप 1 year तक है या 10 years तक है? 1 ईयर तक। ओके सर, 1 ईयर तक। ठीक, ठीक है। चलो जी, ठीक, ओके बेटा, Okay. गुड लक एंड थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।